Welcome to Theme Writing Important Tips Part 2. Theme Writing Important Tips भाग 2 में आपका स्वागत है. Students and scholars who wish to write a theme passage often face some difficulties in the process of writing successfully. They can take the help of these practical tips. We have studied a few tips in the previous discussion. We are discussing the rest of the important tips here. When students and scholars attempt to write a theme or a passage, they have to face certain difficulties. So, these difficulties can be solved or can be overcome by the use of a few practical tips. So these practical tips were discussed in the previous discussion, part 1, which was in the previous video, and here we shall see part 2. जब छात्र थीम राइटिंग लिखना आरंभ करते हैं, कोई गद्यांश पद्यांश लिखना आरंभ करते हैं, लेखन आरंभ करते हैं, उस समय उनके सामने कुछ बाधाएं आती हैं. ऐसी बाधाओं को दूर करने के लिए हमने कुछ प्रैक्टिकल व्यवहारिक बिंदुओं की ओर ध्यान आकर्षित किया है कि आप लेखन के समय अगर इनको अपनाते हैं तो आपकी कई बाधाएं इससे दूर हो जाती हैं. इससे पहले वाले वीडियो में हमने कुछ टिप्स डिस्कस किए थे. उसके बाद के जो टिप्स हैं वो इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं. We have studied a few tips in the previous discussion. We are discussing the rest of the important tips here. Next tip is use well-connected sentences. This means every forthcoming sentence should support the previously written sentence or idea. When there is a flow, there is rhythm and music in the theme passage. This tip is very important because it makes our theme writing very intense. ये जो टिप यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं, साझा कर रहे हैं, ये टिप बहुत आवश्यक है क्योंकि इससे हमारे लेखन की क्वालिटी पर सीधा प्रभाव पड़ता है. यूज वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस. जो वाक्य हम लिखते हैं वो आपस में वेल कनेक्टेड होने चाहिए, वो आपस में बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए होने चाहिए. दिस मीन्स एवरी फोर्थकमिंग सेंटेंस शुड सपोर्ट द प्रीवियसली रिटन सेंटेंस और आइडिया. वेल कनेक्टेड सेंटेंसेस should be used. What does this mean? This means that every forthcoming sentence, every new sentence should support the older sentence. When we write sentences, the one which was previously written should be supported by the one that is coming after it. Well-connected sentences होने चाहिए अच्छी थीम राइटिंग के लिए. इसका तात्पर्य यह है कि जो वाक्य हम पहले लिख चुके हैं और जो वाक्य हम उसके बाद लिख रहे हैं, उनमें आपस में समीकरण ऐसा होना चाहिए कि बाद वाला वाक्य पहले वाले वाक्य का सहारा बने, उसको हाईलाइट करे, उसको सपोर्ट करे. When there is flow, there is rhythm and music in the theme passage. When there is a flow. Now what happens when the sentences are well connected? Then there is a flow. जब sentences बहुत अच्छे से जुड़े हुए होते हैं तो इनमें एक गति होती है, इनमें एक बहाव होता है. ये एक धारा की तरह आगे बहुत प्राकृतिक रूप से जैसे धारा बहती है, ऐसे हमारे विचार आगे बढ़ने लगते हैं. There is rhythm and music in the theme passage. When the thought flows smoothly, then there is a rhythm and music in the theme passage. जब विचार धारा प्रवाह होते हैं तो उसमें संगीत होती है, लय होता है, सुर होता है, ताल होती है, अर्थात
वो रुचिकर लगते हैं, वो लुभावने लगते हैं। एंड थीम राइटिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट from this point of view that it should be interesting and attractive. थीम राइटिंग के लिए बहुत आवश्यक बिंदु है कि वो आकर्षक भी होना चाहिए, वो हमारे लिए लुभावना भी होना चाहिए। Add variety and diversity to your creation in a balanced proportion. Another tip is that we should add variety and diversity to your creation in a balanced proportion. You should add variety. That is, there should be multiple types of content or ideas or writing processes. There should be variation. And then there should be diversity. There should be difference also. हमारे लेखन में जो भाव हम प्रयुक्त करते हैं, जो प्रसंग प्रयुक्त करते हैं, जो शब्द प्रयुक्त करते हैं या जो वाक्य प्रयुक्त करते हैं, इनमें विभिन्नता भी होनी चाहिए और इनमें एकता भी होनी चाहिए, इनमें विविधता भी होनी चाहिए। Why? And this should be in a balanced proportion. और ये एक संतुलन में होना चाहिए। Why? This will make it attractive and impressive, because when there is variety and diversity, the writing becomes attractive and impressive. जब variety और diversity होते हैं तो हमारी जो लेखन का जो आउटपुट होता है, जो प्रोडक्ट निकल के आता है, वो अट्रैक्टिव और इम्प्रेसिव होता है, वो बहुत प्रभावशाली होता है। The value of the literary creation increases when it has diversity, and when there is diversity, the literary creation becomes all the more important, because you don't have to write stereotyped, or you don't have to write one type of writing, one type of thought. There should be diversity. जब किसी भी लेखन में डाइवर्सिटी होती है, विभिन्नता होती है, विविधता होती है, तो उस स्थिति में उसकी कीमत बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? क्योंकि हम लोग फ्लैट या एक जैसे या एक दूसरे से मिलते जुलते ना विचार पसंद करते हैं, ना वाक्य पसंद करते हैं, ना शैली पसंद करते हैं। जब विविधता आती है तो हमारा रुझान या हमारी उसमें रुचि बढ़ जाती है। द आइडिया बिकम्स रिच व्हेन वेराइटी इज एडेड टू इट. So both are important, and then there should be variety, there should be variation, and we have studied earlier also what is the meaning of variation or variety. So you can refer to the earlier videos to know what variety is or what variation is. So when there is variety, then it becomes very rich. So both are important. हमने अभी पिछले कुछ वीडियोस जो बनाए हैं उसमें वैरायटी और वेरिएशन पर चर्चा की है। आप इसके लिए उन वीडियोस को देख लें, वहां से संदर्भ ले लें, और उसके बाद आप ये देखें कि वैरायटी हमारे लेखन के लिए कितनी आवश्यक है। इसलिए वैरायटी और डाइवर्सिटी दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। द लास्ट सेंटेंस शुड बी वेरी क्लियर एंड इंप्रेसिव. अनदर टिप फॉर writing a theme is that the last sentence should be very clear and impressive, because the last sentence is the concluding sentence. It connects you to the main idea, so its value is much more than the other sentences of the body. The last sentence summarizes everything. The last sentence concludes everything. It provides the gist or the sum up of what we have spoken or written earlier. For that reason, the last sentence becomes very important. हमारा जो आखिरी वाक्य होता है थीम राइटिंग का, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए उस वाक्य में स्पष्टता का होना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि जितना वाक्य स्पष्ट होगा उतना ही वो इंप्रेसिव होगा, प्रभावशाली होगा।
ऐसा क्यों? क्योंकि इट कनेक्ट्स यू टू द मेन आइडिया। वो आखिरी वाक्य ही है जो हमें मुख्य बिंदु से या मुख्य धारा से जोड़ता है, और उस आखिरी वाक्य को पढ़ने के बाद ही हमें याद आता है कि हमने बात कहां से शुरू की थी या विचार क्या था, कहां से शुरू किया था। तो ऐसी स्थिति में उस पहले वाक्य और आखिरी वाक्य के बीच का तालमेल या सामंजस्य अपना प्रभाव पैदा करता है। इसलिए लास्ट सेंटेंस बहुत क्लियर और इंपॉर्टेंट हो जाता है। इट समराइजेस द होल पैसेज, एंड द role that the last sentence plays is that it summarizes the whole passage. ये जो आखिरी वाक्य है इसका महत्व ये है कि ये अब से पहले हमने जितना लिखा था ये उस पूरे की समीक्षा कर देता है, और जब पूरे की समीक्षा होती है तो जो हम भूल चुके भी हैं कोई पॉइंट, वो भी पॉइंट हमें अपने आप याद आ जाता है। इसलिए उस लास्ट सेंटेंस का प्रभावशाली होना, स्पष्ट होना अत्यंत आवश्यक है। Another point is use accuracy and meticulousness. Many readers read rapidly only to catch the main idea or theme of the subject matter. They read only the key words or sentences. Accurate expressions convey the knowledge very quickly. Most readers like them. Now this tip is also very, very important for effective writing. And that is that one should use accuracy and meticulousness. ये टिप बहुत आवश्यक है कि हम जब लिखें तो लेखन की क्रिया में हमें एक्यूरेट होना चाहिए, हमें पिन पॉइंटेड होना चाहिए, हमें सटीक होना चाहिए, and meticulous, clear, neat and clean. There should be so much of clarity that it should be devoid of all confusion. इतनी स्पष्टता होनी चाहिए कि किसी भी तरह का भ्रम या विचारों के गुथ जाने की जो हमारे दिमाग में प्रतिक्रिया आती है या चर्चा में जो एक प्रतिक्रिया आती है कि विचार गुथ जाते हैं, ऐसा नहीं वैसा कंफ्यूजन कॉज हो जाता है, वो सब नहीं होना चाहिए। यूज एक्यूरेसी एंड मेटिकुलसनेस. मेनी रीडर्स रीड रैपिडली ओनली टू कैच द मेन आइडिया ऑफ or theme of the subject matter. This is important because many readers, they do not read the whole thing. They rapidly read only the main idea of or the subject matter. Now many readers, they read so fast that they don't want to read the whole thing. Even if there is something very important that you are trying to explain, they will not want to read it. कई पाठक ऐसे होते हैं कि वो बहुत स्पीड से पढ़ते हैं, तीव्र गति से पढ़ते हैं और पूरा नहीं पढ़ते हैं। और ऐसे लोग जो पूरा नहीं पढ़ते हैं वो केवल मुख्य बिंदु को पकड़ते हैं या मुख्य भाव को पकड़ते हैं, या जिसको कहते हैं ना मेन पार्ट पढ़ना। ये प्रवृत्ति होती है, ये प्रकृति होती है पाठकों की। और हम जब लिखते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारी बात पूरी पढ़ी जाए, पूरी समझी जाए। वी वॉन्ट एवरीथिंग टू बी हर्ड, वी वॉन्ट एवरीथिंग टू बी रेड, बट द रीडर विल रीड ओनली द मेन पॉइंट्स टू अवॉइड अ गैप इन दिस प्रोसेस। इसमें किसी भी तरह का व्यवधान हमारे लिए ना उत्पन्न हो, उसके लिए आवश्यक है कि एक्यूरेसी और मेटिकुलसनेस बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ हो तो वो अच्छे से पढ़ा जाएगा। They read only the key words or sentences. Accurate expressions convey the knowledge very quickly. Most readers like them. Now, how to save this problem? How to save this mistake which is on the part of the reader or the reception, the person who is receiving it? हमने तो लिख दिया, लेकिन हमारे रिसीव करने वाले ने, हमारे पाठक ने उसको अच्छे से नहीं पढ़ा। हमने बहुत कुछ लिखा, उसने उतना अच्छा उसको नहीं पढ़ा या उतना स्पष्ट रूप से, उतने विस्तार से नहीं पढ़ा। इस समय पर हमें बुरा लगता है कि हमने इतना अच्छा, इतना ज्यादा लिखा और उसने नहीं पढ़ा। तो उस गैप को अवॉइड करने के लिए, उस क्षति से को बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं? एक्यूरेट एक्सप्रेशंस कैन बी यूज्ड।
आप सटीक शब्द और सटीक भाव बोलिए। आप पिन पॉइंटेड बात बोलते हैं तो वो बहुत जल्दी से समझ में आ जाते हैं, एंड मोस्ट रीडर्स लाइक देम, एंड मोस्ट ऑफ द रीडर्स दे लाइक सच एक्यूरेसी, एंड व्हेन देयर इज एक्यूरेसी देन द लैप्स डज नॉट अकर। जब एक्यूरेसी होती है तो ये क्षति हमारे लिखने और उसके पढ़ने के बीच में नहीं होती है। नेक्स्ट टिप इज यूज प्रेसिजन व्हाइल राइटिंग। When you are precise, you are pinpointed in communication. This is very compatible for the reader or the listener. Another important point is precision. We as writers should know how to be precise and when to be precise. हमें संक्षेप में लिखना या संक्षिप्तीकरण आना चाहिए। कब संक्षेप में लिखना है, किस बात को संक्षिप्त में कहकर के छोड़ देना है, ये हमारे लेखन के समय ध्यान देने वाला टिप है। When you are precise, you are pinpointed in communication. Why? Precision helps us to be pinpointed. संक्षिप्तीकरण हमें पिन पॉइंटेड या एक्यूरेट या टू द पॉइंट लिखने में बहुत सहायक होता है। दिस इज वेरी कंपैटिबल फॉर द रीडर और द लिसनर, एंड दिस प्रिसिजन इज ऑलवेज वेलकम फॉर द रीडर और द लिसनर। संक्षिप्त भाव से कही गई बात एक श्रोता के लिए भी रुचिकर होती है और एक पाठक के लिए भी रुचिकर होती है। आप कम शब्दों में बात कहें, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं जिन्हें विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसी बातों को संक्षेप में कहना आवश्यक है, और जब हम ऐसी बातों को संक्षेप में कहते हैं तो हमारे संक्षिप्तीकरण से पढ़ने के समय हमारा रीडर, हमारा पाठक हमसे प्रसन्न होता है, और अगर सुन रहा है तो हमारा श्रोता हमसे प्रसन्न होता है। नेक्स्ट टिप इज avoid examples, quotations and illustrations in short writings. These should be used only when the length of the writing is big enough to inculcate them. Now, another tip is that we should avoid examples, quotations and illustrations in short writings. When the theme which we are writing is short in length, then we should not add examples, quotations or illustrations. हमारी रचना यदि आकार प्रकार लंबाई में छोटी है, संक्षिप्त है, उस समय हमें उसमें उदाहरण या कहीं से कोई बात उद्धृत कर दी, या हमने मुहावरे और लोकोक्तियां या किसी भी तरह की और कोई चीज उसमें उद्धृत करने का प्रयास किया, तो उससे उस छोटी रचना को सपोर्ट भी नहीं मिलता है और हमारी रचना का बैलेंस बिगड़ जाता है। इसलिए छोटी रचना में हमें इन चीजों को नहीं प्रयुक्त करना चाहिए। These should be used only when the length of the writing is big enough to inculcate them. Where can we use these things? The tip is not to use them or to avoid them. The tip is to decide where to use and where not to use. यहां जो टिप हम चर्चा कर रहे हैं वो ये नहीं है कि हम मना कर रहे हैं, हम ये तय करें, निर्धारित करें कहां पर एग्जाम्पल, कोटेशन, इलस्ट्रेशन यूज होना चाहिए, कहां पर यूज नहीं होना चाहिए, क्योंकि अलग अलग रचनाओं में इनका अलग अलग प्रभाव है, इनके लिए स्पेस अलग अलग है, इनके लिए गुंजाइश अलग अलग है। तो जहां नहीं हो वहां न प्रयुक्त करें, जहां है वहां प्रयुक्त कर लें। दोनों के बीच का जो इस टिप को बैलेंस करके यूज करना हमारे विवेक पर निर्धारित है। There is no hard and fast rule for theme writing. So use your creative skills and innovative ideas as and when you find it possible.
Now, this is very, very important that there is no hard and fast rule for theme writing. No rules have been laid out how to write a theme. So, creative skills can be used. Innovative ideas can be used. क्योंकि थीम राइटिंग के लिए निर्धारित नियम नहीं है. हमने नियम भी अपने आप बनाए हैं, हमने टिप्स बनाए हैं अपनी सुविधा के लिए, वो भी स्वयं बनाए हैं. ऐसी स्थिति में क्योंकि कोई निर्धारित नियम नहीं है, तो हमें क्या करना चाहिए? अपनी क्रिएटिव स्किल्स को प्रयुक्त करना चाहिए. Creative skills are those which are innovative ideas. Creative skills and innovative ideas means something that nobody others knows, but I know. यहां पर क्रिएटिविटी जो सृजनशीलता हमारे अंदर होती है, और इनोवेशन जो नवीनता हमारे अंदर होती है, नव सृजन करने की क्षमता हमारे अंदर होती है. अब जब नियम है ही नहीं, तो हम कुछ नया भी उसमें जोड़ सकते हैं, और वो नया अच्छा भी हो सकता है. और इसी तरह से क्रिएटिव राइटिंग या इनोवेशंस होते हैं. इसलिए हमें अपने आप को कॉन्फिडेंटली जज करना चाहिए. यदि कहीं पर हमारे पास कोई क्रिएटिव आइडिया है, इनोवेटिव आइडिया है, स्किल है, हमें उसका प्रयोग करना चाहिए. ओरिजिनलिटी इज ऑलवेज वेलकम. वाई? We should use this because originality is always welcome. मौलिकता को हमेशा स्वागत मिलता है. जब भी आप कोई मौलिक रचना लिखेंगे, पाठक या श्रोता उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि मौलिकता में नयापन होता है, और हर नई चीज के लिए हमारे मन और मस्तिष्क में स्थान होता है. उसे ग्रहण करने के लिए हमारे अंदर क्षमता होती है. Originality is always welcome because our mind and our heart both welcome them, both have space for them. These are some tips for theme writing which we have seen in 2 parts. ये कुछ टिप्स हैं थीम राइटिंग के लिए जिसे हमने 2 भागों में देखा है. थैंक यू. धन्यवाद.